You all in the name of Christ. Let us begin with today's session of praise, worship, and preaching by signing ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us take this time to close our eyes and calm down ourselves and remember each and every blessing that God has blessed you with. Let us take this time to thank our Lord for blessing us the way we are, for making us in His own image and likeness. Let us thank Him for our family, our friends, our houses, our studies, our workplaces. Father God, at this time, I come to you to be a part of your kingdom. And I believe that you are the source of all joy, all wisdom, all healing. Lord, fill me with your spirit and grace so that I may praise and worship you with all my heart, with all willingness, and open my heart to receive your word and act according to it. With faith, let us make this prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from all that's evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. So, as the psalmist says in Psalms 47, that we all need to be joyful to praise and thank God, and we need to clap our hands and sing with all our might, with all the zeal that we have. At this moment, let us be happy with a smiling face. Let us praise and thank Him for creating us the way we are. So, let us sing these wonderful songs with and mean each and every word. Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Karibu into His presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Jumbo, Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Karibu into His presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Oh, Almighty God. Almighty God. Jumbo, Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Karibu into His presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Jumbo, Jesus loves you. Are you happy? He is with you. Karibu into His presence. Why do you worry? Hakuna Matata. Oh, Almighty God. Oh, Almighty God. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them
them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And we all sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We all sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Amen. Oh la la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Amen. Hallelujah. Yes, we praise you, Lord. We thank you, Oh, we give you Jesus. glory. Hallelujah. There is none like you. You are the source of Oh, we lift your all name on high. Blessed be your holy joy. name. Thank you, Blessed Jesus. be your Hallelujah. holy name. You alone are the King of kings. You're the Lord We of thank you, lords. Jesus. Your kingdom has no end. You are my God, Oh, my we King, my love Master. you. You my Creator, you my Redeemer, you my all in all. Hallelujah. We thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your holy name. Hallelujah. Thank you, my God. Kira makara shangla mamundriya la la masa shangla mashna. Bala bala shangla mashna. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You alone are worthy. You deserve our glory. You deserve our honor. You alone are in everything, my God. There is none like you, my God. Blessed be your holy name on high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your kingdom reigns forever. You are our King, our Master, our Creator. Indeed, there is none like you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your holy name on high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our Lord says in Matthew chapter 11, He says, come to me, all you who are weary, heavy laden, broken hearted, and I will give you rest. At this moment, let us come to our Savior, our Redeemer, the only one who has all the peace, all the healing in this world. We rely on people when we are in trouble. But at this moment, let us come before our Lord with all that we have, trusting in Him that He indeed is the one who can give us that rest, that peace in life. Because in His presence, there is healing that is divine. And there is no other power can save, but only His power. Let us mean each and every word as we sing this beautiful song. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Let us actually welcome Him in our lives, in our hearts, in our midst. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place.
Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, in thy presence there's healing divine. No other power can save, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Fill all the hungry and empty within. Restore us, O Father, revive us again. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my life. Thou art welcome in my life. Yes, we praise you, Lord. We bless your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Yeshua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Oh, Yeshua. We sing hallelujah. 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 Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. You are my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Shalama irabakababa shalama endrama shiridiri. Endrama shiridiri ura bakariaria. Endrama shiridiri bishiri bishiri la baktini. Endrama shiridiri kiriya. Let's just take this time and calm ourselves as we are about to enter into the Holy of Holies. Do not be distracted by anyone or anything around you. Do not let your thoughts distract you. Just believe the words that say, there is no one
like our God, your God, and mine. Oh God, He loved us. He loved you and me so much that He sent His only Son to die for us and redeem us from the clutches of the evil one, from all sins. That is how great our God is. Let us surrender ourselves for these very few moments that we have to worship this Almighty God, to worship Him, to love Him and tell Him that, yes, Lord, there is no one like you, and I adore you with all that I have. Let us mean each and every word and worship Him as we sing this wonderful song. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. Indeed, there is no one like our God. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. As we continue to worship our God, let us continue telling Him that there is no one like Him. Keep your eyes closed and picture Jesus in front of you. That sweet and mighty King who saved you,
from the clutches of the evil one. Continue to worship Him and tell Him, there is no one like you. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Let us continue to worship our God in silence.
And all the people of God said, Amen. Amen. वचन का विषय है यीशु राजा और यीशु के राज्य का महत्व। तो आज हम देखते हैं, जैसे हम लोग ने इसमें वचन में देखा है, आज का जो वचन दिया है जॉन चैप्टर 13 वर्ड ऑफ गॉड 14, जो जन्नत के बादशाह थे वो हमारे लिए सब छोड़कर जमीन पर आ गए। उस्ताद होकर भी मसीहा ने सहादियों के पैर धोए, अपने शिष्यों के पैर धोए। इस वचन का अर्थ इस तरह है, परमेश्वर जो सारे संसार का सृष्टि का कायनात है, वो बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो अपने सारे राज्य को, वैभव को छोड़कर जमीन पे आ गए और अपने शिष्यों के, मतलब हमारे सारे मानव जाति के उसने पैर धोए। और हम देखते हैं वो हमारा राजा कैसा है और उस राज्य के बारे में आज हम जान जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को 3 बातों के बारे में बताऊंगी, 3 विषय के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले जो परमेश्वर यीशु राजा है, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके क्वालिटीज को और उसके सारे जीवन को हम अपने सामने रखूंगी। और दूसरी जो बात है ईश्वर के राज्य जो हमारे लिए है, जो परमेश्वर का राज्य, तो हम ईश्वर के राज्य में किस तरह प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरी जो बात प्रभु ने हमें बताई है, हमें उस राज्य का मुकुट पाने के लिए इस पृथ्वी पर मेहनत करनी है और इस पृथ्वी पर हमें जीवन बिताना है प्रतिदिन। तो हम देखते हैं ये रविवार का जो दिन है, आने वाला जो संडे है, तो हम क्राइस्ट द किंग, मतलब हम यीशु राजा के फेस्टिवल को, त्योहार को मनाते हैं। और हम सारे संसार के कोने कोने में देखते हैं, सभी लोग चर्च में जाते हैं और हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। उसी तरह हम देखते हैं बाइबल में आइजाया चैप्टर 62 और वर्ड ऑफ गॉड 3, प्रभु कहता है तू परमेश्वर के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और ईश्वर के हाथ में एक राज मुकुट ठहरेगे। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में एक सुंदर मुकुट बनने वाले हैं और परमेश्वर के राज्य में हमें वो मुकुट देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है, हम सभी जो लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हम अपना समय उसके लिए बिताते हैं, हम उसके राज्य के लिए प्रयास करते हैं, प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं, प्रतिदिन हम उसके सम्मुख बैठते हैं। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये वादा किया है कि हम उनके हाथ में एक मुकुट है, एक शोभायमान, एक सुंदर मुकुट है और हम उसके हाथ में एक राज मुकुट है जो परमेश्वर हम सबको देने के लिए उसने तैयार रखा है। तो इसलिए आज हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं साम 47 चैप्टर 47 वर्ड ऑफ गॉड 1, सभी राष्ट्रों तालियां बजाओ, आनंदित होकर जय जयकार करो, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, समस्त पृथ्वी का महान राजा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के सभी लोग और पृथ्वी के सभी राज्य प्रभु की आराधना और स्तुति करे, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य है। जॉन चैप्टर 19 वर्ड ऑफ गॉड 19, हम देखते हैं जब पृथ्वी पर यीशु आए थे तो वहां पर पायलट ने क्रूस पर कौन से वचन लिखे थे, यहूदियों का राजा। पायलट ने जब यहूदियों के राजा करके उसे लिखा था, लेकिन पायलट को पता भी नहीं था वो कौन है करके। उसने जब क्रूस पर यीशु को मारने के लिए, बलिदान देने के लिए, उससे न्याय करने के लिए लेके जा रहे थे, तभी पायलट उसे पूछ रहा था क्या तू यहूदियों का राजा है। लेकिन वहां पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं यहाँ राजा हूँ, लेकिन यीशु ने कहा आप ही तो बोल रहे हो मैं राजा हूं करके। हम देखते हैं हमारे हर एक लोगों के मन में एक ख्वाहिश होती है कि हम बड़े बने, हम राजा बने, हम अधिकारी बने, हम महान बने, यह हर एक लोगों की ख्वाहिश होती है। ऐसी ख्वाहिश रखना कोई गलत बात नहीं है, हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हम बड़े बने, हम महत्वपूर्ण बने, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तारीफ करें और लोग हमें ऊंचा उठाए। और इस तरह हम देखते हैं, इस तरह जब हमारे मन में ख्याल आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह कोई हमें ऊंचा
ऊंचा उठाता है, कोई हम प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और हम इस तरह के बहुत नीचे हद तक भी गिर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यीशु को देखते हैं। यीशु राजाओं का राजा था। वो सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था स्वर्ग में, सोने के सड़कों पर वो चलता था। और हम देखते हैं उतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु ने राजा बनने से पहले क्या किया, राजा बनने से पहले उसके साथ क्या हुआ। तो हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। योहन जॉन चैप्टर 18 वर्ड ऑफ गॉड 6, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु को बहुत बार राजा बनाने के लिए मौका लोग देख रहे थे। जब उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों का चमत्कार किया तो बहुत सारे लोग उसे राजा बनाने के लिए निकल गए थे, लेकिन यीशु ने उनका इनकार किया। यीशु वहां से सटक गए, वहां पर रुके भी नहीं है। हम देखते हैं बहुत बार यीशु को राजा बनने के लिए लोगों के मन के जो विचार थे वो जानता था और वो वहां से वो राजा बनने की इच्छा मन में नहीं रखता था। तो हमें ये स्वभाव को धारण करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के राज्य है। सबसे पहला जो राज्य है ईश्वर का राज्य, दूसरा जो है शैतान का राज्य और तीसरा जो है मनुष्य का राज्य। तो हम कौन से राज्य में है, तो ये हमें प्रतिदिन हमें ध्यान करना है। कौन से राज्य में हम हैं, कौन से राज्य में हमें होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं हमारा राज्य कौन सा, कहाँ पर हमारा राज्य है, कौन सा हमारा घर है और कौन से राज्य में हमें प्रवेश करने के प्रयास करने हैं। ईश्वर का राज्य मतलब हम देखते हैं जहाँ पर बहुत कुछ, सब कुछ, खुशी, शांति, आनंद सब कुछ है, वो ईश्वर का राज्य है। और वो राज्य के लिए हमें अपने आप को हर दिन प्रतिदिन अपने आप को तैयार करना है। ईश्वर का राज्य, बाइबल में वचन दिया गया है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु पवित्र आत्मा में प्राप्त शांति, आनंद और खुशी है। ये ईश्वर का राज्य है। दूसरी जो बात हम देखते हैं शैतान का राज्य। शैतान का राज्य तो हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर को जानते नहीं है, ईश्वर के साथ बैठते नहीं है, सो बुराई और पापों में भरे हुए वो सारे शैतान के राज्य के होते हैं। और इसीलिए जॉन चैप्टर 10 और 10 में कहा गया है, चोर आता है चोरी करने, मारने और नष्ट करने। और तीसरी जो बात है मनुष्य का राज्य। अब हम देखते हैं मनुष्य का राज्य मतलब कौन सा राज्य है, जहां पर हम संसार को प्यार करते हैं। जैसे हमारे हम देश में रहते हैं, ये संसार का राज्य है। और इस देश में हम जो रहते हैं ये मनुष्य का राज्य है। आज का वचन ही हम देखते हैं, आज प्रभु यीशु का वचन जो आज जॉन का वचन जो है, आज यूहन्ना में से प्रभु यीशु जक्कैयुस को बुलाते, जक्कैयुस जक्कैयुस पेड़ से उतर कर जल्दी नीचे आ, मुझे आज तुझे घर में प्रवेश करना है। तो जक्कैयुस को हम देखेंगे तो जक्कैयुस पहले कौन से राज्य में था, जक्कैयुस पहले संसार के राज्य में था। वो धनी था, पैसे वाला था, ईश्वर को नहीं जानता था, संपत्ति से भरा हुआ था, पाप का जीवन उसका था, लोगों को फंसाने वाला जीवन था। वो ईश्वर के राज्य में नहीं था, मनुष्य के राज्य में था और शैतान के राज्य में था। लेकिन जब यीशु ने उसे पुकारा, यीशु ने उसे आवाज दी और यीशु के बातों को उन्होंने आज्ञा पालन किया और उसके बाद उसके जीवन में ईश्वर का राज्य आया। यीशु ने उसे कहा भी, आज इस घर का उद्धार हो गया है। तो कभी कभी हम देखते हैं हम मनुष्य के राज्य में, शैतान के राज्य में, तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ और कठिनाइयों को उठाना पड़ता है और तभी हम ईश्वर के राज्य को महसूस कर सकते हैं और उसे हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर हमारे हृदय में आता है तब हमारे अंदर ईश्वर का राज्य की शुरुआत होती है। तो इस समय हम देखते हैं प्रभु ने कहा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंतिम को क्षण तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसका अर्थ है परमेश्वर आज भी स्वर्ग में है, लेकिन वो स्वर्ग में सिर्फ सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं है, वो आज भी हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए आता है। जब भी हम बीमार होते हैं वो एक दवाई बनकर, वो एक डॉक्टर बनकर हमारे पास आता है। जब हम अकेले में बैठते हैं, निराशा में बैठते हैं, वो हमारा सांत्वन दाता बनकर आता है।
जब हम संकट में होते हैं तो हमारी वो सहायक बनकर वो हमारे पास आता है। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं वो हमारी सांत्वना बनकर आता है। तो ये अनुभव हम लोग हर दिन कितने बार हम करते हैं, कितनी गवाहियों को हम सुनते हैं। इस तरह परमेश्वर राजाओं का राजा है, फिर भी वो हमारे साथ हमारे हृदय में रहना चाहता है। और इस हृदय में रहने वाले प्रभु को हमें प्रतिदिन उसकी आराधना करनी है। नहीं हमें सिर्फ आराधना क्राइस्ट द किंग को के फीस्ट के दिन ही करनी है, उस त्योहार के दिन ही करनी है, ऐसा हमारा नहीं है। हमें प्रतिदिन उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसको हम धन्यवाद देना है। तब परमेश्वर अपने राज्य के रहस्य को हम पर प्रकट करता है और हम उसके राज्य को ढूंढते हैं, पाते हैं, औरों को भी हम उसके राज्य में लेके आते हैं। और ये सबसे बड़ा महान कार्य को हम महसूस करते हैं। हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन को देखते हैं, जो रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ जो संत सेंट जॉन को दिया था प्रभु ने, उससे पहले हम देखते हैं सेंट जॉन, उसके दो भाई थे, याकूब और योहान। ये दोनों भाई थे। जब यीशु पृथ्वी पर था, यीशु के साथ ये दोनों भाई थे। तब एक दिन उसकी माँ आई और उसके माँ ने क्या कहा, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटे को दाहिने बैठाओ, एक बेटे को बाईने बिठाओ। तो ये हमारी इस तरह की ख्वाहिशें होती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा होना है। लेकिन उसके माँ को पता नहीं था, जब यीशु को कहते हैं वो दाहिने और बाईने बिठाने के लिए, लेकिन यीशु जब मर गया तो दाहिने और बाईने कौन था। तो इस तरह हमारे जीवन में भी इस तरह की ख्वाहिशें होती है, इस तरह के हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है। और हम देखते हैं वही यूहन्ना जो संसारिक था, संसार के राज्य में था, जब यीशु मरने के बाद हम देखते हैं यूहन्ना का जो भाई याकूब था, उसे तलवार के घाट उतार दिया, उसे तलवार से मारा गया। लेकिन यूहन्ना को बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारी यातनाएं देने के बाद भी वो मरा नहीं। और उसके बाद में उसको कढ़ाई में तेल में डाल दिया गया था, उबालते हुए तेल में, वहां पर भी वो मरा नहीं। आखिर में उसे टापू में एक जगह है, वहां पर सुनसान जगह पे उसे छोड़ दिया। लेकिन इतनी यातना सहने के बाद भी यूहन्ना जो है, जिसने रेवलेशन को उसे प्रभु ने प्रकट किया, वो यूहन्ना कभी भी डगमगाया नहीं। वो ईश्वर के राज्य के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया उसने, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। और हम देखते हैं टापू में परमेश्वर ने उसे रेवलेशन की सारी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की। तो हम देखते हैं आज इन दिनों में, कठिन दिनों में, हमें ईश्वर के राज्य के लिए, उसके मुकुट पाने के लिए हमें तैयार होना है। उसके मुकुट पाने के लिए हम कौन सी तैयारी करेंगे हमारे जीवन में? उसके मुकुट पाने के लिए, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत सारे सताव, दुख, तकलीफ, अन्याय, अत्याचार, पीड़ाओं को उठाकर, जैसे यीशु ने उठाया, जैसे यीशु ने बर्दाश्त किया, जैसे यीशु ने हमारे अपने आप को, परमेश्वर का पुत्र था, राजाओं का राजा था। लेकिन हम देखते हैं उसने, पिलातुस ने लिखा, तो तू क्रूस पर जब था तो लोग उसे कहते थे, अरे तू राजा है तो नीचे उतर आ, तू परमेश्वर तो नीचे उतर आ। लोग उसकी मजाक कर रहे थे और लोग उसे लेकिन वहां पर हम देखते हैं, हम उसके साथ किस तरह की बुरा बर्ताव किया। उतना ही नहीं, जब पृथ्वी पर था तो यीशु को कोई सम्मान नहीं किया, कोई उसका आदर नहीं किया। लेकिन उसे पहचाना किसने? सबसे पहले यीशु को पहचाना शैतान ने। शैतान उसे कहते हैं, अरे तू परम पावन परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो पायलट था उसने भी नहीं पहचाना, वो बोलता है तू राजा है। इस तरह हम बहुत सारे लोग आज ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। और हम देखते हैं यीशु प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा था, लेकिन वहां पर किसने पहचाना? उसने एक चोर ने पहचाना। उस चोर ने देखा वो क्रूस पर और उसने कहा, यीशु तू जब तेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस चोर ने पूरा जीवन भर पाप किया, लेकिन आखिरी में उसने ईश्वर का राज्य हासिल किया।
उस समय वो बहुत बड़ी इस तरह के बाइबल नहीं थे, किताबें नहीं थे, प्रार्थना नहीं थे, लेकिन उस चोर को वो राज्य मिला। तो आज हमारे पास बहुत कुछ है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ, बाइबल है, प्रार्थना है, वचन है, पवित्र आत्मा है, माता मरियम है, संत लोग हैं, हमें बहुत कुछ इस संसार में है। तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ हमें मेहनत करनी है, तब हम ईश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ईश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारे बाइबल में उदाहरण दिए गए हैं। हम देखते हैं ईश्वर के राज्य मोतियों के समान है, और ईश्वर का राज्य जो 10 कुंवारियों के बारे में बताया है। हम बाइबल में देखते हैं एक लाजर और भिखारी के बारे में देखते हैं, किस तरह लाजर जो था लाजर जो था जो गरीब जो था, किस तरह वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया। और हम देखते हैं इस तरह बहुत सारे उदाहरण प्रभु ने हमें दिए हैं इस बाइबल में। तो इससे हमें प्रतिदिन हमें इस तरह मेहनत करनी है कि हम ईश्वर के राज्य को और उसके महान शक्ति को हम इस पृथ्वी पर ही अनुभव करें। हम ये नहीं सोचे कि हम मरने के बाद ईश्वर के हमारे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तुम इस संसार के नहीं हो। जब हम यीशु को अपनाते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, तो हम संसार के लोगों की तरह हमारा जीवन नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ छोड़ना होता है, बहुत कुछ त्यागना होता है, बहुत कुछ हमें अपने आप को तैयार करना होता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के सेवक भी थे, प्रभु के दास भी थे, बहुत धार्मिक थे, उन्होंने बहुत सारी पीड़ा थी, वो ईश्वर के राज्य में भी थे, फिर भी उन्होंने तकलीफ उठाई। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को देखते हैं, वो ईश्वर के राज्य में था, वो धार्मिक था, पश्चाताप का संदेश देता था, फिर भी उसे यीशु परमेश्वर के लिए उसे मरना पड़ा। तो कभी कभी हमें इस पृथ्वी पर इस तरह के सताव, इस तरह के तकलीफ, इस तरह की कठिनाइयों को, इस तरह के प्रभु के राज्य के लिए हमें तैयार होने के लिए, इन सब बातों को हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे हृदय रूपी घर में आ जाओ प्रभु, मेरे हृदय रूपी घर में आकर निवास करो प्रभु, और मेरे हृदय का राजा बन जाओ प्रभु। और हम देखते हैं पृथ्वी के जो राजा होते हैं, वो पृथ्वी के राजा अपने आप को दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े बंगला, गाड़ी, सोने चांदी से, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या उनको जो अधिकार मिला था उसे दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी, बंगला, गाड़ी, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु को देखेंगे, प्रभु ने अपने आप को दिखाने के लिए हमें, उसने अपने आप को नम्र बनाया, हमारे पैर उसने धोए, हमारे लिए वो पापी बना, हमारे लिए वो श्रापित बना, हमारे लिए वो गुनहगार बना, हमारे लिए गुलाम बना, हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। और इतना लहू बहाने के बाद उसने हमें कहा, जो मैंने किया है वो तुम्हें करना है, जैसे मैंने शिष्यों के तुम्हारे पैर धोए हैं ना, शिष्यों के हमारे पैर धोए हैं। यदि आज हम नम्रता लेते हैं तो हम यीशु के इस सेवा में हम उसे योगदान देते हैं। और जब हम नम्र बनते हैं, तब परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए, इन छोटी छोटी बातों से हम ईश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह मैथ्यू चैप्टर 20 और वर्ड ऑफ गॉड 26, जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे सेवक बने, और जो प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। आज भी प्रभु यीशु स्वर्ग का राजा है, लेकिन वो आज भी हमारे लिए एक दास की तरह, एक सहायता करने वाले सहायक की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक मामूली इंसान बनकर हमारी सहायता करता है। मैं आपके सामने एक गवाही मुझे याद आ रही है, जब ब्रदर विक्टर का डैडी जो है, उनके घर में जब फ्राइडे के दिन हीलिंग सर्विस होती थी, बहुत सारे दुष्ट आत्मा से लोग वहां पर आते थे और गैर ईसाई लोग आते थे। और एक दिन यही क्राइस्ट द किंग का फीस्ट का जो उन्होंने वचन दिया था, फिर संडे क्राइस्ट द किंग का त्योहार था, और उन्होंने वचन दिया। वचन देने के बाद उन्होंने कहा, अभी सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करो, और अपनी आंखों को बंद करो, और तुम्हारे पास यीशु राजा आपको मिलने के लिए आएगा, और वो यीशु राजा आपसे बात करेगा। और सभी लोगों को यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा गीत गा रहे थे, और सभी लोग, ये एक सच्ची घटना है, मैं कोई ऐसी बनावट नहीं बता रही हूँ,
और यीशु राजा आएगा और आपको सबको मुकुट देगा, सबको बात करेगा, सबको प्यार करेगा, ऐसे वो बता रहे थे। और उसी समय सब होने के बाद एक बहन ने गवाही दी, वो गवाही से हम लोग सब लोग हिल गए, सबके आंखों में आंसू आए। तो वहां पर वो बहन कह रही थी कि यीशु जो है एक भिखारी की तरह, भिखारी की वेश में एक झोली लेकर आया और सबके सामने अपनी झोली फैलाकर आंसुओं के साथ वो रो रहा है और वो कहता है, तुम्हारे पाप मेरे झोली में डाल दो और मुझसे अनंत जीवन ले लो। तुम्हारे पाप मेरे झोली में डाल दो और मुझसे अनंत जीवन ले लो, मुझसे शांति प्राप्त कर लो। और इस तरह रोकर यीशु हर एक के सामने अपनी झोली फैला रहा था। इस दर्शन से, इस दृष्टांत से मेरे आंखों में भी आंसू आ गए कि आज भी प्रभु राजाओं का राजा है, लेकिन हम मनुष्य के लिए कितनी हद तक वो हमारी सहायता करने के लिए चले आते हैं। तो उस परमेश्वर के लिए हमें कितना बर्दाश्त, जितना भी हम करेंगे वो कमी है। हम जितना, इसीलिए बहुत सारे संतों ने कितना सताव, कितनी तकलीफ और कितनी कठिनाइयों को उठाया और उन्होंने परमेश्वर के, ईश्वर के राज्य को लिए अपने आप को तैयार किया। यदि एक व्यक्ति ईश्वर के राज्य के लिए तैयार होता है तो वो कितने सारे लोगों को ईश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकता है। तो आज हमारे सामने एक चुनौती है। प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसे इस तरह बोलते हैं, लेकिन हम उसकी क्वालिटीज को, उसके सारे गुणों को, उसके सारे अंदर की जो महान रहस्यमय धन को, उस खजाना को, वो धन ये नहीं है संपत्ति, पैसा, ये सब हमें मिलेगा, ये सब हमें मिलेगा, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ड ऑफ गॉड 33 में कहा है, तुम्हें पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, ये सब मिलेगा। लेकिन जो खजाना प्रभु यीशु ने जो उठाया, उस खजाने को जब हम उठाने के लिए तैयार होते हैं, इन छोटे छोटे दुख तकलीफ के लिए हम तैयार होते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य के मुकुट को पाने के लिए अपने आप को योग्य करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं प्रभु यीशु के मुकुट पाने के लिए हमें क्या किया जाएगा? हमें सम्मान नहीं मिलेगा इस पृथ्वी पर। याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सम्मान मिलने के लिए, प्रशंसा मिलने के लिए, तारीफ मिलने के लिए कभी भी ध्यान नहीं करना है। जब प्रभु यीशु को गधे पर बिठाया गया तो गधे ने सोचा, अरे आज मेरी इतनी तारीफ क्यों हो रही है, आज मेरी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? लोग तो हमेशा मुझे मूर्ख कहते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को हम भी गधा कहते हैं, पागल कहते हैं, तुझे अक्ल नहीं है कहते हैं। तो उस समय हम गधे को देखते हैं, गधे ने मन में सोचा, अरे ये रोज मुझे तिरस्कार मिलता है, रोज मुझे अपमान मिलता है, बोझ मिलता है, लेकिन आज मेरी तारीफ इतनी क्यों हो रही है? उसने ऊपर नजर उठाकर देखा तो ऊपर कौन बैठा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो उस गधे पर बैठ गया प्रभु यीशु और उसने हमें एक उदाहरण दिया। उस गधे की तरह हमारा तिरस्कार होता है, निंदा होती है, हमें बोझ दिया जाता है, हमारा बोझ कोई उठाने वाला नहीं होता है, हमें मूर्ख समझा जाता है। सेंट पॉल कहते हैं, जब तक संसार तुम्हें मूर्ख नहीं कहता है तब तक तुम ईश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं होते हो। तो इस तरह हम गधे का उदाहरण, लेकिन आने प्रभु का जब आगमन होगा तो प्रभु गधे के ऊपर नहीं आएगा, डोंकी के ऊपर बैठकर नहीं आएगा, प्रभु आएगा हॉर्स के ऊपर बैठ के, और वो न्यायाधीश बन के आएगा, जजमेंट के लिए आएगा, हमारा मुकुट लेकर वो आएगा हमारे लिए। तो इसलिए आज हमें इस राजा की तैयारी करने से पहले हमारे हृदय में उसे हम बुलाएंगे और हम हमेशा उस हृदय में रहने वाली प्रभु की हम स्तुति और आराधना करेंगे। और हम देखते हैं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक प्रभु के सेवक ने इस तरह की गवाही दी और इस गवाही को मैंने सुना। ये बहुत बड़ा कन्वेंशन था और इस कन्वेंशन के लिए बहुत बड़ी तैयारी ग्राउंड में की गई थी और एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग आने वाले थे। सभी लोगों ने वो तैयारी की और अपने अपने घर में चले गए, लेकिन जो मेन प्रवचन देने वाला था, जो वचन देने वाला सेवक था, वो जल्दी आया। उसने देखा ग्राउंड में कोई नहीं है और सब लोग घर में चले गए, लेकिन पूरी तैयारी करके चले गए, माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, कुर्सी बिर्सी। तो उसने सोचा, चल मैं वहां पर बैठकर अभी जो वचन देना है, इस वचन को मैं अभी पढ़ू थोड़ा। और उसने वो स्टेज के ऊपर बैठा और वचन पढ़ने के लिए शुरू हुआ। तो उसने देखा एक आसमान से ऐसे कोई व्यक्ति उतरा, उसके कंधों के ऊपर एक टॉवेल था और ये उसने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखकर ये जो प्रभु का सेवक था, प्रचारक था, बहुत डर गया, पसीना पसीना हो गया और उसने उतरकर सारे कुर्सियों को पोंछना शुरू किया।
सब कुर्सियों को पोंछते 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 वो मंच के ऊपर आया और उस सेवक से कहा, उठो, मुझे ये कुर्सी भी साफ करनी है, टेबल साफ करनी है। और ये जो सेवक था वो पूरा पसीना पसीना हो गया था, कांप रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है और क्या कर रहा है और ये कैसे इधर वो ये मैंने दृश्य देखा। और उसने कांपते कांपते पूछा, आप कौन हो? तब उसने कहा, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं यीशु हूँ। और ये एक सच्ची घटना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी वो हमारे साथ वो राजा बनकर नहीं, हमारा दोस्त बनकर आता है, हमारा डॉक्टर बनकर आता है, हमारा सहायक बनकर आता है, हमारा मददगार बनकर आता है। और वो राजा ही नहीं, हमारा दोस्त भी है। तो उसके राज्य के लिए हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे जितने भी लोग होते हैं उनको हम तैयार करने के लिए इस समय हमारे मन को प्राण तैयार करेंगे। और आज हम इस वचन के द्वारा प्रभु को, इस हमें गीत को गा रही हूँ और इस गीत के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु को हम आमंत्रण करेंगे। और अपने हाथों को अपने हृदय पर रखिए और हृदय पर रखिए और हम इस हृदय में हमारे जीवित ईश्वर को हमारे हृदय में बुलाएंगे और हम उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज मेरे हृदय में आओ, प्रभु आज मुझे यहाँ वहाँ नहीं रहना है, प्रभु आपको सिर्फ मेरे हृदय में रहना है, प्रभु मैं हृदय में चाहती हूँ, प्रभु। और इस तरह हम आज हमारे हृदय में हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, इस समय जितने भी आपके बच्चे वचन सुन रहे प्रभु, इस समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु। इस समय जो भी बीमार है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, फैमिलीज प्रभु जो भी बॉन्डेज में है प्रभु, जो फैमिलीज प्रभु इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है प्रभु, उन हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जिनका जन्मदिन है प्रभु, वेडिंग एनिवर्सरी, उन्हें समर्पित करती हूँ। हर एक प्रेयर ग्रुप के लीडर को प्रभु, हर एक प्रभु प्रेयर वॉरियर्स को प्रभु, हर एक प्रभु ट्रांसलेटर को प्रभु, हर एक प्रभु जो प्रेजेंट वर्शिप करते प्रभु, उन्हें हर एक को प्रभु उन्हें समर्पित, फैमिलीज को समर्पित करते प्रभु। आपका आदर, आपकी महिमा और आपके वो सारे गुण प्रभु हमारे जीवन में आए प्रभु, हमारे आत्मा में आए प्रभु, हमारे परिवार में आए प्रभु। इस प्रार्थना प्रभु इस समय हम करते प्रभु, इस गीत के द्वारा प्रभु, इस स्तुति गीत के द्वारा प्रभु, तो हर एक हृदय को स्पर्श कर दे प्रभु, हर एक हृदय में आ जाओ प्रभु, हर एक को इस समय चंगाई दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु। और इस समय इस गीत पर ध्यान करेंगे। आजा यीशु राजा, आजा से राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बसना। आजा यीशु राजा, तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू है जीवन की शांति और आधार है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा तेरी राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तेरे स्पर्श से जीवन मेरा कोमल है। आजा यीशु राजा, तू है शांति दाता, तू है मुक्ति दाता, तू है जीवन की मुक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा, तू है ज्ञान दाता, तू है जीवन दाता, तू है जीवन की शक्ति और आधार है।